का अभिमान है, यह शाम मेहनत का मान है, हर विद्यार्थी का अभिमान। नमस्कार, शुभ संध्या सभी उपस्थित परम सम्माननीय जनों को। आज की ये शाम हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है। इसमें मैं मुरलीधर पटेल To begin this beautiful day, let's fill the air with I request all the respected guests. I request all the respected students a chance to showcase their creative journey filled with music, dance, and loud applause. As we welcome you all to the Thomasite family, lighting the lamp signifies the removal of darkness and special guest, Mr. Rohit, Mr. Yogendra Singh, Rahat, respected Principal Sister Bennett, Reverend Father George Paris Priest of pleasure and gratitude. Our presence adds grace and inspiration to आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, है दिया बुझे नहीं। as the flame rises upward, it reminds us to aspire for greater height of excellence and virtue. Let the light illuminate our minds. सात रंगों से खुद को मिला लीजिए, भूल सिकवा सात तालियों के दीपक जला दीजिए। आप सभी आया, सभी सम्मानीय जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। Special guest Mr. Rohit Verma and Reverend fathers, brothers, sisters, teachers, parents and all my dear students. We are truly privileged to have you all with us today in this evening. On behalf of the entire Thomasite family, से ज्ञान की ओर ले जाती है। to welcome you all to the most awaited celebration of the year. Every year, this function gives our students a chance to showcase their creativity, confidence and spirit to celebrate the bond we all share as one big and inspiration. So sit back, relax and get ready to mesmerize. As we begin this auspicious occasion, रिक्वेस्ट है जो भी टीचर्स फ्री हैं कृपया करके ग्राउंड पर आएं। टीचर्स आपसे रिक्वेस्ट है जो भी टीचर अपने बच्चों से फ्री हो गए हैं कृपया करके ग्राउंड पर। बैठक व्यवस्था में यहाँ से आपके साइड से तेरे दर पे हम आए हैं।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इन नन्हे मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Respected greetings to all the dignitaries and guests present here. Respected Chief Guest, His Lordship, Mar James Atikaram, Bishop of Sagar, Guest of Honor, Reverend Mother Prioress, Asha Tayal, President of the Society, our special guest, Mr. Rohit Verma, SDM of Jagatlaj, Mr. Yogendra Singh, SDOP, Mr. Monish Carlo, Block Education Officer, Mr. Nirmal Rathore, Tahsildar, Mr. Rajkumar Kapoor, Cluster Principal, Father George Kiransra, Parish Priest of St. Thomas Church, Reverend Fathers, religious brothers, sisters, principal and staff members of various schools, dear parents, teachers, and my beloved students, a warm good evening to each one of you. It is with immense joy, deep gratitude, and heart full of pride that I, on behalf of the entire Thomasite family, extend a heartfelt welcome to each one of you on this momentous occasion of our annual day celebration, Threshold of Time. This day is not merely a tradition. It is a reflection of who we are, our values, our achievements, our dreams, and our united journey towards excellence. Today we come together to celebrate the dedication of our students, the commitment of our teachers, the support of our parents, and the blessings of everyone who stands with us in the noble mission of education and service. It is a moment to look back with satisfaction and look forward with hope. We are truly blessed to have His Lordship, Mar James Atikaram, Bishop of Sagar Diocese, in our midst. Just as Sagar, the vast ocean, receives and nurtures countless rivers, your fatherly leadership embraces and uplifts innumerable lives across the diocese, giving them direction, strength, and hope. You have always shepherded the diocese with a compassionate and fatherly heart, guiding, protecting, nurturing every institution, every mission, and every child under your care. Your simplicity, kindness, and warmth make us feel not only supported but truly cherished as members of one family. We welcome you to your Lordship with profound respect, love, and gratitude. I call upon heartfelt welcome to our beloved Mother Prioress. Your gentle presence fills our hearts with strength and peace. As the head of our Benedictine Society, you guide us like in faith and service. Welcome, dear Mother. Mr. Monish Carlo, Block Education Officer. We welcome Mr. Rajkumar Kapoor, Cluster Principal, the Principal of Girls School. With your patience, care, and tireless dedication, you shape young minds and touch young hearts every day. You give your time, your energy, and sometimes your own peace just to help our children to grow. We deeply appreciate you and we thank you with all our. We welcome dear teachers. And to our beloved students, this evening shines because of you. Your smiles, your dreams, your talents, and your innocence fill our campus with life and joy. You make us proud every day. You are not just a student, you are the heart, the joy, and the soul of our Thomasite family. We love you dearly. A warm, loving, and heartfelt welcome to each one of you, those who are present here,
once again we welcome you all to this beautiful celebration. May this evening fill our hearts with joy, pride and unforgettable memories. Let us celebrate together to the spirit of unity. A warm welcome to all of you, those who are present here, the dignitaries and parents and the teachers from different schools and the fathers, religious brothers. Welcome one and all. Swagat, Vandan, Abhinandan. जोरदार तालियां हमारे इन बच्चों के लिए। थैंक यू क्वायर ग्रुप फॉर योर वंडरफुल वेलकम। इन्हीं कुछ सामाजिक मूल्यों पर आधारित जीवन की नई कठिनाइयों और संघर्षों को दर्शाता हुआ हमारा यह मनोरंजक एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम समय की दहलीज। सो लेट्स एक्सप्लोर, वंडर, इमेजिन एंड एंजॉय फॉर आवर अपकमिंग स्टार्स। मेरा गेम चल रहा है, थोड़ा रुको ना। अरे बुद्धू, तुम गेम ही खेलती रहोगी? तुम्हें पता है आज सेंट थॉमस गवर्नमेंट स्कूल में विज्ञान मेला लगा है। अच्छा, मेला? वहाँ कुरकुरे भी मिलेंगे क्या?
अरे भुक्कड़, जब देखो खाने को चाहिए। वहाँ बाल मेला नहीं, विज्ञान मेला लगा है। सुना है वहाँ एक प्रोफेसर द्वारा टाइम मशीन का आविष्कार किया गया है। अच्छा, टाइम मशीन? वो तो मैं अपने फोन में भी देखती रहती हूँ। अरे तुम सब यही बातें करते रहोगे कि चलोगे भी? वहाँ जाकर पता चलेगा आखिर माजरा क्या है। वाह, इतने अच्छे मॉडल्स। हाँ, पर वो मॉडल भी तो बताओ मुझे जिसमें से अच्छा अच्छा खाना निकलता हो। किसी भी मॉडल से खाना तो नहीं निकलेगा, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ भविष्य में तुम्हें क्या क्या खाने के लिए मिलेगा। पर वो तो मेरे स्मार्टफोन से पता चल सकता है। हे भगवान, तुम और तुम्हारा स्मार्टफोन, पता नहीं आगे जाकर क्या करोगी। सर, क्या आप सच बोल रहे हो? क्या हम सच में भविष्य की चीजें देख सकते हैं? हाँ, यह बात सच है। मैंने एक टाइम मशीन बनाई है जो भविष्य की घटनाएं हमें आज भी बता सकती है। अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब काल्पनिक बातें हैं। अरे जब तुम फोन की दुनिया से बाहर आओगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना। अरे बच्चों, आपस में लड़ना बंद करो, परंतु ये बात सच है। अरे आप सबको भविष्य की पड़ी है, पर मुझे तो भूख लग रही है। अरे भुक्कड़ चुप। सर, आप तो हमें वो मशीन दिखाइए। नहीं नहीं बच्चों, उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। टाइम मशीन कुछ नहीं होता। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने मोबाइल में भविष्य दिखाती हूँ, मेरे एस्ट्रो ऐप पर। सर, आज तो हम टाइम मशीन देख कर ही जाएंगे। पर दूर से देखना, कोई टच नहीं करेगा। ये लो बच्चों, ये है मेरा नया आविष्कार। सर, क्या इस टाइम मशीन से वाकई हमारे जीवन का भविष्य जान सकते हैं? अरे तू भी बुद्धू, इस टाइम मशीन के पीछे पड़ा है। इधर मेरे फोन में सब कुछ है। अरे मायरा, मैं जब से देख रहा हूँ तुम फोन के अलावा कुछ बात ही नहीं करती हो। क्या तुम्हें पता है इस फोन से क्या नुकसान है? नुकसान? इसके तो फायदे ही फायदे हैं। अच्छा, तो चलो आओ, मैं तुम्हारे सर से इस मोबाइल का भूत उतारता हूँ। आओ बच्चों, मैं टाइम मशीन से तुम्हें भविष्य में ले चलता हूँ। अरे मेरा कुरकुरा रह गया, पता नहीं वहाँ मिलेगा कि नहीं। अभी हम सब 2010 में हैं। मैं अब तुम्हें 15 साल आगे 2025 की दुनिया में ले चलता हूँ। अरे वाह, यहाँ पर तो हर बच्चे के पास मोबाइल है। वाह, मुझे तो कंपनी मिल गई। मैं तो उनके साथ फ्री फायर खेलूंगी। पर ये सब चुप क्यों है? आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब मोबाइल का जादू है। ये सिर्फ मोबाइल से ही बात करते हैं। क्या मोबाइल से? मतलब ये आपस में बात नहीं करते? हमारी तरह कोई खेल भी नहीं खेलते? तो क्या यहाँ कुरकुरे नहीं खाते? मोबाइल से ही पेट भरते हैं? नहीं, ये खाते तो हैं, पर मोबाइल के साथ। ये तो खाना पीना खेलना कूदना सब भूल ही चुके हैं। हाँ बच्चों, ये पूरी तरह मोबाइल की गिरफ्त में हैं। सची, जरा देखिए तो, ये बच्चे मोबाइल को ही अपना सब कुछ मान चुके हैं।
जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये बच्चे तो पूरी तरह से मोबाइल के संग जोरदार तालियां हमारे नन्हे मुन्ने कलाकारों के बच्चों के लिए जोरदार तालियां। कि आपको पता चले मोबाइल आपके जीवन पर क्या असर डालता है, मगर निराश होने की जरूरत नहीं है। इसके जितने नुकसान हैं उतने फायदे भी हैं, जैसे कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन। हाँ, मगर ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो इन्हीं बच्चों की तरह हो जाओगे जिन्हें ना सोने की चिंता है, ना जागने की, ना खाने की, ना खेलने की, ना घर चाहिए, ना परिवार और ना कोई दोस्त। तो क्या मंजूर है तुम्हें ऐसा जीवन? मायरा, अब समझ आया हम क्यों मना करते थे। सर थैंक यू, आपने हमें भविष्य में फोन की सच्चाई बताई। हाँ सर, हमें सच में बहुत मजा आया। चलो तो फिर बच्चों, अब हम आगे चलते हैं।
मायरा, क्या सोच रही हो? सर, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर फोन का ज्यादा उपयोग करने से बच्चों का ये हाल है तो फिर इनके परिवार का कैसा हाल होगा? सर, क्या हम इनके परिवार को एक बार देख सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, तुम्हें जो खाना है वो जोमेटो से ऑर्डर कर दो। अरे ये नए जमाने की कैसी फैमिली है, यहाँ तो खाना ही नहीं बनता है, कपड़ों की तरह खाना भी रेडीमेड आता है। अरे बुद्धू, तू कहाँ चला गया था? हम सब लोग कितना परेशान हो गए थे। मैं तो यहाँ पेट पूजा करने आया था, पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं और सब अपने अपने में व्यस्त हैं। हाँ, ये है नए जमाने की एडवांस फैमिली। यहाँ आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तो क्या 2025 के बाद सारी फैमिली ऐसी हो जाएंगी? तो जिस तरीके से हम रहते हैं ऐसा कोई नहीं रहता। अरे नहीं नहीं, है ना, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी जैसी हैप्पी फैमिली से मिलवाता हूँ। तुम लोग जल्दी नहा कर आओ, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, सब एक साथ ही खाएंगे। आहा, आलू के पराठे, मजा आ गया। दादा दादी दीदी जल्दी आओ ना। वाह सर, ये तो वाकई कितना खुशहाल परिवार है। एक खुशहाल परिवार ही समाज का सबसे धनी परिवार होता है। जोरदार तालियां हमारे इस खुशहाल परिवार के लिए।
हमारे भारत देश के सभी परिवार हो जाएं। जोरदार तालियां हमारे प्यारे बच्चों के लिए। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नासा में पली मिस्री की डली, नासा में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family. हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family. यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। परिवार को समर्पित इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। इस परिवार को तो देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। हाँ बच्चों, तो देख ली ना इस जमाने की हैप्पी फैमिली। आप जब 2025 में आओगे ना, तो इसी तरह अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। सर, पर एक बात बताइए, हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ पौधे हैं, हर जगह हरियाली दिखती है। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जिनके ऊपर धुआं ही धुआं सा है। और जो जंगल में जानवर रहते थे वो कहाँ गए? क्या जानवरों ने भी अपने घर बनवा लिए हैं? सर, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है। क्या हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? अरे यहाँ तो पेड़ ही नहीं है, तो भविष्य में मेरे फलों का क्या होगा? ये सब हम कुछ दुष्ट इंसानों के कारण हो रहा है। मुझे तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। सर, हम सबका क्या होगा? कैसे रहेंगे हम ऐसी दुनिया में? चिंता मत करो, जरा ये दुनिया तुम भी गौर से देख लो, ताकि जब तुम्हारा जीवन यहाँ हो तो ये गलतियाँ ना हो। सर, पर हमें वो दृश्य भी दिखाइए कि कैसे इंसानों ने जानवरों और पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलो। जादू है ये जादू, जीवन भी जादू है।
हम इंसानों ने थोड़े से स्वार्थ के कारण पेड़ पौधों और जानवरों का क्या हाल बना डाला। भूल गए इंसान कि वो पहले क्या था। भूल गए इंसान कि भगवान ने उसे किस रूप में धरती पर भेजा था। आज उसी रूप को इंसान ने बेबस और लाचार बना दिया। भूल गए इंसान कि वो भी पहले जानवर था। क्यों लेते हैं उनकी जान अपने शौक पूरे करने के लिए? क्यों करते हैं उनका इस्तेमाल खुद को ढकने के लिए? क्या हुआ अगर वो बोल नहीं सकता पर दी है जिंदगी भगवान ने सभी को? क्या इंसान ये देख नहीं सकता? प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो। बोले नहीं सुहानी भोर, बंद करो नफरत का शोर। चैन वही है जीवन में जहाँ प्रेम हो बिखरा चारों ओर। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। प्रेम से हमको जीने दो, जीने दो। अपने बड़े बड़े मकानों के लिए पेड़ों को काट दिया। I am a tree, I give you fruits. I am a tree, I give you medicine. I am a tree, I give you oxygen. I am a tree, I give you environment. इन पेड़ों की करुण पुकार तो सुनिए। अब हम इंसान इस धरती पर आराम से रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है, मॉल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। हा 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 हा। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी। मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है। मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। बड़ा दुखता है, दुखता है। ना काटो मुझे दुखता है। तुमको फल फूल छाया, तू तो समझ ही न पाया। था मैं हरा फिर भी काटा गया, तुझको नजर भी न आया। निर्मोहिया है तू, बेशर्म है, होता
बचा लेरी दुनिया जहां चाहूं मैं सबका भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या थोड़ी सी मिट्टी थोड़ा सा पानी तेरा इसमें क्या ना काटो मुझे बड़ा दुखता है दुखता है दुखता है ना काटो मुझे दुखता है। इन निर्दोष जानवरों और वृक्षों के संरक्षण की प्रेरणा देते हमारे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाएं, संदेश ये सब हम फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। कपूर सर के लिए जोरदार तालियां। भारत माता की। अपने देश के लिए आवाज बुलंद करना ये हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्र हित में जब हम काम करते हैं तो एक अलग आनंद आता है। एक बार हम पुनः भारत माता की जयकारा लगाएंगे। हमारा राहतगढ़ घूमना चाहिए। भारत माता की। धन्यवाद। सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल राहतगढ़ का आज एनुअल डे सेलिब्रेशन और इस कार्यक्रम में आज के चीफ गेस्ट रिस्पेक्टेड फादर बीपी जेम्स जी, बिशप ऑफ सागर, आपका मैं हृदय से राहतगढ़ में स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। गेस्ट ऑफ ऑनर जिनको हम ममतामयी माँ के रूप में जानते हैं, आज हम सभी के बीच में मदर प्रेस आशा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। स्पेशल गेस्ट में चूंकि आज हम सभी के बीच में रिस्पेक्टेड एसडीएम सर को आना था, लेकिन आप सभी देख रहे हैं SIR का काम चल रहा है तो वो हमारे बीच में भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। स्पेशल गेस्ट में हमारे बीच में राहतगढ़ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रिस्पेक्टेड श्री मोनीश कार्लो जी, रिस्पेक्टेड sisters, respected teachers and all my respected parents। आज जिस चीज की जरूरत हम राहतगढ़ वालों को थी, जब यहाँ बात आई इंग्लिश मीडियम स्कूल की, क्योंकि मैं यहाँ राहतगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम स्कूल थी। जब इंग्लिश मीडियम की बात आई तो सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल की जब स्थापना हुई, शुरुआत से लेके आज तक जहां भी जरूरत पड़ी है मैं सेंट थॉमस परिवार के साथ में रहा हूं। और हमारे राहतगढ़ के लोगों को जिस चीज की जरूरत थी, वर्तमान परिवेश में हम देखें तो इंग्लिश की बहुत आवश्यकता है, उसको पूर्णता की ओर ले जाते हुआ हमारा सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल, आज हमने देखा अभी जो हमारे बीच में ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने कार्यक्रम दे रहे थे, एक वो मैसेज देना चाह रहे हैं। आज का जो समय है, इस समय में हम देखते हैं बच्चे मोबाइल लेकर खाना खा रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी, मम्मी पापा भी मोबाइल में मस्त रहते हैं। कुछ अगर बात पूछते हैं तभी बाद में बता रहे हैं। मैसेज ये था कि हम अपने परिवार को, इन बच्चों को अपनी वो ममता, वो प्यार हम छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा एक और भी जो हुआ पर्यावरण का, अब हम ये सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ में 2, 3, 4
हमारा राहतगढ़ और हमारा प्रदेश और हमारा देश साथ में चलेगा। जरूरत है आगे आने की, तो हम पर्यावरण की रक्षा करें। आज हम देख रहे हैं लगातार गर्मी पड़ेगी तो गर्मी, बारिश हो रही है, लेकिन यदि हम ये पेड़ काटते जाएंगे, हम अपने जानवरों को नुकसान पहुंचाते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है वो हम सभी के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। तो ऐसे कई मैसेज आज इस एनुअल डे सेलिब्रेशन पर ये बच्चे देना चाह रहे हैं, जो हमारे पेरेंट्स बैठे, हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है, जो आज की थीम है, इसको हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है इन्हीं बच्चों का है। इन बच्चों के भविष्य को हमें सुरक्षित करना है, और ये तभी होगा जब हम अवेयर होंगे, हम जागरूक होंगे। हम सोचते हैं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार इन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, और सब में राष्ट्रहित की भावना भी होनी चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ये बच्चे आज हमको संदेश देना चाह रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल के उन सभी टीचर्स को जिन्होंने इतनी अच्छी रूपरेखा बनाकर आज हम सभी के सामने ये बच्चों के रूप में रखी है। और मैं इन बच्चों को भी एक संदेश देना चाहूँगा कि आप राष्ट्रहित के रूप में काम करें। आपके जीवन में सबसे पहला जरूरी है अनुशासन। आप अनुशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। आपको सफल होना है तो आपकी जिंदगी में अनुशासन को आप लागू करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज जिस चीज़ की आवश्यकता थी राहतगढ़ वालों को, वो सारी चीज़ें ये सेंट थॉमस कॉन्वेंट स्कूल आपको दे रहा है, आपके बच्चों को दे रहा है। आप अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, और हमारे जो टीचर्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो बच्चों में राष्ट्र प्रेम के साथ सामाजिक और जो भी बातें हैं वो भी बच्चों को जनरल चीज़ों में बताएं, ताकि हमारा जो भविष्य है, ये भविष्य है हमारा, ये जो बच्चे हैं ये कल जाकर हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन्हीं में से बनना है। इनके भविष्य के लिए हम कार्य करें। और आज ये बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो ये आप इस प्लेटफॉर्म पर है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो आपने नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो ये सारा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Sir Rajkumar Kapoor, sir, with a shawl of respect. I also request Sister Bennett, our beloved principal, to present the memento of our love and appreciation to Rajkumar, sir. बहुत बहुत धन्यवाद सर।